Assalamu alaikum. It's your general science class and I'm your teacher Aisha Kausar. Today we will discuss unit number 1, classification of living things, and our topic is classification and characteristics of plants. As we already discussed in previous classes that what is plant, we discussed in detail about the plants, but before going to the main topic, I would like to explain again plants. Do you know what is plant? Plants are living organism. Most of the plant can prepare their own food in the presence of sunlight. Plants have roots, stems, leaves. Some plants have flowers. Plants are usually green in color. Plants are found in water and on land. Now we will move towards the main topic, that is classification and characteristics of plants. So first of all I will explain classification. Classification can be defined as the process of grouping the things in groups and subgroups. The process of grouping the things in groups and subgroups are known as classification. We can classify the things on the basis of their similarities in shape, size, physical structure and color etc. Friends, क्लासिफिकेशन क्या है कि हम जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप्स या सब ग्रुप्स में on the basis of their internal or external features like physical structure, shapes, color, habits etc., then we can say this is the classification process, and we can classify different organisms on their internal or external features. Now come towards the classification of plants. Plants can be classified into two main groups, that is non-flowering plants and flowering plants. So first of all we will discuss non-flowering plants. Students, have you seen any plant around you which do not bear flowers? आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे अपने इर्द गिर्द कि जिन पे जो है फूल नहीं खिलते. आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो कि फूल पैदा नहीं करते या उन पे फूल नहीं खिलते, विच डू नॉट बियर्स फ्लावर्स. ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे प्लांट्स को हम कहेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स डू नॉट बियर फ्लावर्स, दे ग्रो ऑन डैम्प प्लेसेस. अब डैम्प प्लेसेस कौन सी है? shady places. They usually grow in shady places, or they usually grow on damp places, damp soil. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते. फॉर एग्जांपल मॉस, फर्न एंड कॉनिफर, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. आप देख सकते हैं कि ये कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि मॉस एंड फर्न विच डू नॉट बियर फ्लावर्स. Now come towards the second group, that is flowering plants. Flowering plants can bear flowers. बहुत सारे प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे कि जो बहुत दिलकश किस्म के फ्लावर्स उनके ऊपर लगे होते हैं. छोटे फ्लावर्स भी होते हैं, बड़े फ्लावर्स भी होते हैं. आपके इर्द गिर्द फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, आपने देखे होंगे. वो ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स बियर करते हैं, जिनके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, तो वो आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process of reproduce the offsprings same organisms. Reproduction वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग्स या फिर बेबी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं. ये प्रोसेस आपके पास रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है. ठीक है, दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड एंड सीड जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स. फ्लावरिंग प्लांट जो है सीड्स पैदा करते हैं और सीड्स जो है आगे फर्दर दोबारा से जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाते हैं.
Now what is germinate? Germination is the process in which seed grows into a new plant is called germination or seed germination. Class, this is the seed germination process. आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे सीड से न्यू प्लांट किस तरह से जर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। पहले सीड है, सीड से फर्दर स्टेप बाय स्टेप आपके पास इस अंडरस्टैंड करें कि स्टेप बाय स्टेप आपके पास जो है सीड ग्रो कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है सॉइल के अंदर, और फिर ये कन्वर्ट हो रहा है या फिर ग्रो हो रहा है एक न्यू प्लांट में, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. Some flowering plants are very large and some flowering plants are very small. And the large flowering plants are sunflower, rose, jasmine and pansy etc. And the small flowering plants are wheat and grasses etc. तो देखे होंगे कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे छोटे फ्लावर्स लगते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स बड़े होते हैं, ठीक है। जिनमें आपके पास जो लार्ज फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सनफ्लावर और जैस्मिन या रोज़ वगैरह हैं, ठीक है। यूजुअली आपने रोज़ देखा होगा। इसके अलावा जो स्मॉल प्लांट्स हैं उसमें वीट एक्सेट्रा, ठीक है, जो कि आपके पास स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। नाउ फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स। हमने पहले पढ़ा प्लांट्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं 2 मेन ग्रुप्स में, विच इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देन फर्दर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड हो रहे हैं, विच इज़ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट एंड डाइकोटिलेडन्स प्लांट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोकॉट प्लांट्स और मोनोकोटिलेडन्स प्लांट। बिफोर गोइंग टू explain the monocot and dicot plants, I want to explain cotyledons. Cotyledon is a softened part of the seed which stored food for young plant embryo. स्टूडेंट्स कोटिलेडन आपके पास क्या है? ये एक सीड है। इसको देख लें कि सबसे पहले आप देखें ये सीड की जो आउटर कवरिंग है, ये जो आपको ब्राउनिश कलर नज़र आ रहा है, ये सीड की आउटर जो कवरिंग है ये बीन सीड है, ठीक है। इसकी आउटर कवरिंग को आप कहेंगे सीड कोट। जब आप इस सीड को खोलते हैं तो अब आप देखें कि यहाँ पे आपको ये लाइट से जो पार्ट नज़र आ रहा है, इस पार्ट को आप क्या कहेंगे कि ये किसी भी सीड का कोटिलेडन है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सीड का कोटिलेडन है, ठीक है। ये पार्ट आपके पास कोटिलेडन है और ये यंग प्लांट को जब तक ये प्लांट खुद अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते तब तक ये यंग पार्ट जो है या ये सॉफ्टन पार्ट यंग प्लांट को नरिश करता है। नाउ कम टूवर्ड्स द मोनोकोटिलेडन्स प्लांट. मोनोकोटिलेडन्स आर आल्सो कॉल्ड मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। मोनो मीन्स 1 एंड कॉट मीन कॉट रिप्रेजेंट्स कोटिलेडन्स, ठीक है। मोनो 1 कॉट cotyledons. This is also known as monocot plants. The plant having only one cotyledon in their seeds are called monocotyledons plant. ऐसे प्लांट्स कि जिनके सीड के अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन मौजूद होगा उसको मोनोकॉट प्लांट कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीट, मेज और राइस। मोनोकॉट प्लांट की एग्जांपल्स आपने पढ़ी, वीट, राइस और मेज़। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास राइस है और ये वीट है, जो कि आपके पास इनका कोटिलेडन जो है वो सिंगल कोटिलेडन होता है, ठीक है। ये आपके पास सिंगल कोटिलेडन है जो कि मोनोकॉट प्लांट है, ठीक है। वीट एंड राइस। सिंपली आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी कह सकते हैं कि जब आप सीड को हटाकर सीड को तोड़ने की कोशिश करें तो वो सीड 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड ना हो सके, तो ऐसे सीड को आप कहेंगे मोनोकॉट सीड है, ठीक है। ऐसे और जो सीड आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट ना हो सके या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो सके तो आप कहेंगे कि ये किसी मोनोकॉट प्लांट का सीड है। द नेक्स्ट सब ग्रुप इज डाइकोटिलेडन्स प्लांट. Dicotyledons also known as dicot plants. Di mean 2, cot represents cotyledon. Those plants having 2 cotyledon in their seeds are called dicotyledons plant. ठीक है, आपने ऐसे बीज देखे होंगे। फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया बीन सीड जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो रहा था, विच इज़ डाइकोटिलेडन.
The examples of dicotyledon plants are mango, lemon, peanuts, beans, etc. Now see, here are some seeds which are dicotyledons, that is bean seed. अब आप ये bean seed को देख सकते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में, अब देखें ये bean seed आपके पास है, जब इसको आप ये सीड कॉर्ड को हटाएंगे तो देन आप देखेंगे कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये 2 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो कि आप कहेंगे ये डाइकोटिलेडन प्लांट है। ठीक है, डाइकोट प्लांट का सीड है। अब ग्रेन को देख लें, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट और प्लांट्स होते हैं, जैसे आप पीनट देख लें, लेमन देख लें, मैंगो देख लें, तो सबका जो सीड है वो 2 इक्वल हाफ में कट होगा, तो आप कहेंगे कि ये डाइकोटिलेडन प्लांट है। ठीक है, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं प्लांट्स की, मोनोकाट प्लांट एंड डाइकोट प्लांट्स की, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मोनोकाट प्लांट्स कौन से होते हैं और डाइकोट प्लांट्स कौन से होते हैं। जहाँ अभी तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो इस एक्टिविटी से या इन पिक्चर्स को देख के आपको क्लियर हो जाएगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोकाट एंड डाइकोट प्लांट की सीड की बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोनोकाट सीड है। ठीक है, ये मोनोकाट सीड है, जो कि आपके पास ऐसा सीड है जिसमें सिंगल कॉटिलेडन होता है। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डाइकोट सीड है, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये आपके पास ये 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, जिसके अंदर 2 कॉटिलेडन्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास डाइकोट प्लांट है, और यहाँ पे आपके पास सिंगल कॉटिलेडन है, तो कि आपके पास मोनोकाट प्लांट है। ठीक है, कम टूवर्ड्स द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज फ्लावर्स ऑफ मोनोकाट एंड डाइकोट। फर्स्ट ऑफ ऑल we discussed flower of monocot plant. The flower of monocot has 3 floral parts or multiple of these number. देख सकते हैं 3 फ्लोरल पार्ट्स, कि मोनोकाट का जो भी प्लांट होगा उसके 3 फ्लोरल पार्ट्स होंगे, जैसे कि आपके पास देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, या फिर इसी का मल्टीपल होगा। लाइक आपके पास 3 है, देन फिर 3 है, फिर 3 होंगे, 3 का मल्टीपल होगा। जैसा आप कहेंगे 3 है, देन 3, फिर उसके बाद फिर 3 फ्लावर्स होंगे, 3, 6 और 9। उसके बाद हम डाइकोट प्लांट की बात करते हैं। तो डाइकोट प्लांट का फ्लावर कैसा होता है? द फ्लावर ऑफ डाइकोट हैज़ 4 or 5 फ्लोरल पार्ट्स, 4 or 5 फ्लोरल पार्ट्स और मल्टीपल ऑफ दीज नंबर, कि यहाँ पे फ्लोरल पार्ट्स 4 होंगे, या 4 का मल्टीपल 8 होंगे, या फिर 5 फ्लावर्स होंगे, या फिर 5 का मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो फ्लावर आप देख सकते हैं मोनोकाट और डाइकोट प्लांट का। ठीक है, now the next property is leaf of monocot leaves are narrow and pointed. ये आपके पास देख सकते हैं, ये नैरो और पॉइंटेड लीफ होते हैं मोनोकाट में। ठीक है, मोनोकाट प्लांट्स के लीफ नैरो और पॉइंटेड लीफ होते हैं। इन मोनोकाट लीफ बीन्स आर पैरेलल। आप देख सकते हैं कि ये प्लांट्स के अंदर जो छोटी छोटी आपको वीन्स नज़र आती हैं, ये मोनोकाट प्लांट्स में पैरेलल वीन्स होंगी। ठीक है, बिल्कुल एक ही सिमत में जाती हुई वीन्स आपको नज़र आएंगी। ठीक है, बट हम जब बात करते हैं डाइकोट प्लांट की, तो डाइकोट प्लांट का लीफ कैसा होता है? डाइकोट लीफ आर ब्रॉड एंड वाइड। In dicot leaf, veins are started from the center, thick midrib and make a network in leaf. अब डाइकोट प्लांट की लीफ की हम बात करेंगे, तो डाइकोट प्लांट का लीफ जो है वो ब्रॉड होता है और वाइड होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि डाइकोट प्लांट में जो है सबसे पहले आप देखेंगे कि ये मिडरिब होती है। ठीक है, एक मिडरिब प्रेजेंट होती है, और मिडरिब्स की साइड से आपके पास इसी प्लांट लीफ के सेंटर से जो है वीन्स निकल रही होंगी, जो कि पूरे प्लांट लीफ के अंदर एक नेटवर्क बना रही होती है। ठीक है, जो कि आपके पास डिफरेंस देखिए मोनोकाट एंड डाइकोट लीफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स ऑफ मोनोकाट एंड डाइकोट प्लांट। मोनोकाट हैव फाइब्रस रूट्स एंड डाइकोट हैव टैप रूट्स। ठीक है, मोनोकाट की रूट्स जो है वो फाइब्रस होती हैं और डाइकोट की टैप रूट्स होती सकते हैं कि ये थिन सी और इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं होती। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं, जब आप डाइकोट की बात करेंगे तो इसकी रूट्स जो है वो ज़्यादा गहराई में और सरफेस में ज़्यादा होंगी, और दूसरा ये थोड़ा सा मजबूत भी होती हैं। ठीक है,
आपके पास डाइकॉट के अंदर टैप रूट्स प्रेजेंट होती हैं और मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं। जहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होगी दोबारा से मैं समराइज़ करूँगी कि हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी आज। तो सबसे पहले आपके पास हमने डिस्कस किया प्लांट्स को कि प्लांट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया कि ग्रुपिंग एंड सब ग्रुपिंग जब हम करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो वो आपके पास क्लासिफिकेशन है, ठीक है। उसके बाद हमने प्लांट्स को देखा कि प्लांट्स दो मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई हुए हैं, विच इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट हमने बात की है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं इनको फर्दर हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, जो कि आपके पास मोनोकॉट प्लांट हैं एंड डाइकॉट प्लांट हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड में सिंगल कॉटिलेडन होता है, सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है। कॉट प्लांट के सीड में दो कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की कुछ फीचर्स, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया कि मोनोकॉट प्लांट की फ्लावर के अंदर 3 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जबकि डाइकॉट प्लांट में 4 to 5 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं या फिर इन्हीं का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लीव्स की बात की, तो लीव्स जो हैं वो मोनोकॉट के अंदर नैरो और पॉइंटेड लीव्स होते हैं और डाइकॉट के अंदर ब्रॉड एंड वाइड लीव्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने रूट्स की बात की, तो रूट्स हमने कहा रूट्स जो है प्लांट का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि अर्थ सरफेस से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो आपके पास रूट्स जो हैं मोनोकॉट के अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं एंड डाइकॉट के अंदर टैप रूट्स होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपके पास सीड्स हैं जो कि मोनोकॉट हैं और कुछ आपके पास डाइकॉट सीड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि अब आपने इसी सारे लेक्चर को देखकर आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और उसके बाद आपने उस रिज़ल्ट को मेरे साथ शेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करेंगे कि आपको डिफरेंट किस्म की सीड्स चाहिए होंगी। टेक डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स लाइक मेज, rice, pea, bean, wheat, etc. Take glass half filled with water. Soak all these seeds in water for at least 12 hours. You can leave these seeds overnight. Now take them one by one and try to divide into 2 pieces. What did you observe? Make a list of seeds which after soaking in water got divided into 2 parts and which did not. I hope कि आपको एक्टिविटी की समझ आ गई होगी। अब आपने दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्टिविटी आपने परफॉर्म कैसे करनी है। कि आपने कुछ डिफरेंट किस्म के सीड्स लेने हैं, लाइक आपके पास मेज, राइस, पी, बीन, व्हीट एक्सेट्रा। तो इसके बाद आपने हाफ ग्लास पानी का लेना है और उसमें इन सीड्स को आपने ओवरनाइट छोड़ देना है या फिर मैक्सिमम आपने 12 आवर्स इनको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आप जो है 12 आवर्स के बाद आप देखेंगे सीड्स को वन बाय वन आप सीड कोट को उतार कर उसका कॉटिलेडन्स चेक करेंगे, ठीक है। आप फिर लिस्ट बनाएंगे जो सीड्स 2 कॉटिलेडन्स में कन्वर्ट होते हैं उसको आप एक साइड पे रखिए, जो सिंगल कॉटिलेडन है उसको आप एक साइड पर रखिए, ठीक है। और उसके बाद आप एक लिस्ट बना दें और लिस्ट में आप बताएं कि कौन सा सीड मोनोकॉट प्लांट का है और कौन सा सीड डाइकॉट प्लांट का है, ठीक है। फिर आपने वो लिस्ट मेरे साथ शेयर करनी है। थैंक यू।